Association of Indian Universities, one of the premier higher education institutions of the country, established in 1925, is commemorating its 100th anniversary, celebrating a century of excellence in higher education, research, and academic collaborations. As a part of this historic occasion, AIU has announced a special initiative, the 100 Lecture Series, to engage the universities in thought-provoking discussions on the evolution and future of higher education, for which AIU has invited IIS Dean to be University to host a lecture as a part of this prestigious initiative. In this series, we have amongst us today Professor K.C. Sharma Sir, retired Professor, Department of Botany, and former Director of Environmental Science Department, Rajasthan University, and former Vice Chancellor, Kurukshetra University. Sir has taught UG and PG classes for 35 years and guided 21 PhD students. Sir has published over 75 research papers in national and international journals and has authored 4 books. Presently, he is Chairman, Haryana State Higher Education Council, also working as National President, Vidya Bharati Uच्च Shiksha Sansthan since last 5 years, and Chairman of Center for Multidisciplinary Research, Dharwad. Sir is Honorable Member of the Executive Council of the IIS Deemed to be University. We welcome you, sir. May I now request Honorable Vice Chancellor, Professor T.N. Mathur, sir, and Advisor, Professor K.S. Sharma, sir, to please welcome our esteemed guest. Thank you, sir. I now invite Professor K.C. Sharma, sir, to address the gathering. Professor T.N. Mathur Sahab, Vice Chancellor of this deemed to be University, Professor Sharma ji, Professor John, Deans, Chairpersons and faculty members of the Institute. मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आदरणीय अशोक गुप्ता जी को की स्मृति को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। सौभाग्य रहा पहले उनसे वार्तालाप होती थी, पर इस बीच में मिलना नहीं हुआ और after nominated by UGC as the EC member of this institute, wanted to come here, but unfortunately in the first meeting I couldn't come and he is no more with us now. Evolution and future of higher education in India and beyond. It is a topic nowadays being discussed all over in our country, particularly after the National Education Policy 2020. Because it seems, and maybe all of you are also experiencing, that the landscape of education in our country is now, there is a paradigm shift in this. It is being reformed, and this reform has begun after July
2020 when Prime Minister of India addressing the country released the document National Education Policy 2020. The faculty is special in the sense this policy is special in the sense that before it was formally accepted by the country, there was a large discussion all over the country. More than 2.5 lakh people suggested what type of education policy our country should have. And around 4-5 years discussion at all levels resulted into this policy. It is a small document. It was a big document, around 500 and odd pages were there. When it was submitted to Prime Minister before finally releasing, Prime Minister said, asked the committee that can you summarize it, because it should go to general masses and nobody is going to read 500 and odd pages. So now it is a summarized document of 60 pages only. And I think most of you have gone through this. Every word and sentence of this document is very special. So I think before going to details of that document, some important developments regarding our education system in the country. I think I'll discuss some of the important landmarks in the development of education system. May I have the first slide, please? Indian knowledge system in our country has been very ancient, and it is from the Vedic times that we know. So without going into very details of that, I think most of you have heard the name of the big universities existing in this country. Around 17-18 universities were there, and Vikramshila, Nalanda, these were the famous universities from all over globe. The learners came and studied here, and from the ancient times we have contributed very much, and these are the famous this zero concept of zero by Aryabhat, pi, and the Pythagorean theorem, etc. Bodhain, in the name of Bodhain it was given. So everything, and Ayurveda, I think the most ancient science existed. हमारे यहाँ पर जो साइंस के बारे में एक मिसनॉमर हुआ कि आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम हियर, आफ्टर दैट ओनली साइंस started developing in this country. हमारे यहाँ पर साइंस को एजुकेशन को ऐसे डिफरेंट फैकल्टीज बता करके नहीं कहा गया, और इसलिए आप जानते हैं जो एक फेमस सब जगह कोट होता है कि 64 कलाएं भारतवर्ष में थी. तो एस्ट्रोनॉमी वाज आल्सो एन आर्ट हियर. वो एस्ट्रोनॉमी इस भी विज्ञान है, और सब प्रकार के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं फील्ड जो एजुकेशन से संबंधित हैं भारतवर्ष में रहे. एक इम्पॉर्टेंट बात भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम की जो है, जो अंडरलाइन हुई है, सा विद्याया विमुक्तये, और ये इतना बड़ा विषय है. ये फिलॉसफी कहता है, भारतवर्ष की एजुकेशन की फिलॉसफी कहता है विद्या यानी एजुकेशन क्या होनी चाहिए जो विमुक्त कर सके, किन से, बॉन्डेज से. जो ह्यूमन बीइंग है, एक्सेप्टिंग इन द लिविंग बीइंग्स, एक्सेप्टिंग ह्यूमन बीइंग. बाकी जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इतने नहीं है, मुक्त रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों से, वो बंधे हुए नहीं रहते हैं. पर ह्यूमन बीइंग ये बंधा हुआ रहता है बहुत सारी चीज़ों से. उससे विमुक्त होना ये विद्या का लक्ष्य होना चाहिए. आज की विद्या जो आज हम एजुकेशन सिस्टम में है, आज का यदि हम कहा जाए तो सा विद्या या
वो विमुक्त एक ही जगह है, युक्त ये हो जाता है, अधिक से अधिक बांधती है हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम। सो द फिलोसफी इज चेंज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू दिस टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी मैं अंडरलाइन यहाँ पर करना चाहता हूँ, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वीमन, ये एंशिएंट इंडियन टाइम से है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स केवल मैंने यहाँ कोट किए हैं, गायत्री, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे लोगों के। और आप जानते हैं कि राजस्थान में कहा जाता है कि राजस्थान में महिलाएं घूंघट में रहती हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं वगैरह। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले भारतवर्ष में वीमन कॉलेज, वीमन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ इज वन ऑफ देम, और दूसरी शायद वीमन यूनिवर्सिटी, और बहुत हुई हैं, लेकिन राजस्थान में ये भी एक यूनिवर्सिटी है। तो भारतवर्ष में हमेशा ये कंसेप्ट रहा है एजुकेशन टू ऑल, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ। मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और बोलूँगा। नेक्स्ट प्लीज। मिडाइवल, जिसको ये जो हमारा जो हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न ऐसे हुआ है। हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड करके बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इस मिडाइवल एज के जो समय तक हमारा गुरुकुल सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम था, लेकिन दैट वाज डेस्ट्रॉयड, और लाइब्रेरीज सब खत्म हुई। और उसमें से एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, प्राइम फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ इस्लाम के बाद पर्दा सिस्टम एमर्ज्ड। भारतवर्ष में कभी पर्दा सिस्टम नहीं था महिलाओं के लिए। आप लोग जितने भारतवर्ष के महिला देवी देवताओं को फोटो देखेंगे, कहीं कोई घूंघट पर्दा लगा करके कोई हमारे देवी देवता कभी नहीं रहे हैं। सो ये भारतवर्ष में एमर्ज हुआ इस समय में। और एजुकेशन केवल जो एफ्लुएंट क्लास की जो महिलाएं थी उनको घर में कुछ जो रिलीजन से संबंधित वो पढ़ाया जाता था, बाकी बाहर आकर के महिलाएं पढ़ सकें ये सिस्टम नहीं था। और नेचुरली फिर बाकी समाज के ऊपर भी असर आया। नेक्स्ट प्लीज। ब्रिटिश जो कॉलोनियल सिस्टम आया वो आया 1771 में। एक चार्ल्स ग्रांट करके व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स की इंग्लिश एजुकेशन की आवश्यकता है। उसके बाद में थोड़ा गैप हुआ, और फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में चार्टर एक्ट 1813 के नाम से प्रसिद्ध है, वो पारित किया और उसमें 2 पार्ट किए गए। 1, भारतवर्ष में एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, और उस समय उन्होंने ईयर मार्क किया 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया। और दूसरा जो पार्ट था एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, उसमें वहाँ ब्रिटिशर्स में 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप ओरिएंटलिस्ट का था, एक एंग्लिसिस्ट का था। ओरिएंटलिस्ट जो ग्रुप है उनका ये कहना था कि भारतवर्ष में एजुकेशन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन इस मीडियम के माध्यम से, और उनको एजुकेशन भारतवर्ष के समाज को दिया जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसका यह कहना था कि वेस्टर्न जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन है एंड शुड बी इन इंग्लिश, वो होना चाहिए। इनके कॉन्फ्लिक्ट चले कुछ समय के लिए, और अल्टीमेटली जो ओरिएंटलिस्ट जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो है एंग्लिसिस्ट का, रिप्रेजेंटेड बाय मैकाले एंड अदर पर्सन्स। नेक्स्ट प्लीज। वो उसमें से हुआ। मैकाले भारतवर्ष में एज लॉ मेंबर के नाते यहाँ पर आए, और उन्होंने अपना एक मिनट बेंथिक, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको दिया। और उस मिनट में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लास्ट में मैंने किया है, आप इस फेमस है मैकाले इसके लिए। He aimed that through this a class of persons will be created who will be Indian in blood and English, in taste, in opinions, in morals and intellect. तो होगा सब, जो आवरण भारत का होगा वो भारत का होगा, लेकिन इंटेलेक्ट में, मॉरल्स में और टेस्ट में हर दृष्टि से वो इंग्लिश होगा। ऐसी हम अंग्रेजी ये शिक्षा देंगे, और माध्यम हमारा जो है
वो अंग्रेजी होगा। इसलिए दो एकदम शिफ्ट हुए। एक मैंने जैसे कहा कि मिडाइवल एज के अंदर महिला शिक्षा ये पीछे गई। दूसरा, ब्रिटिशर्स काल के अंदर एजुकेशन भारतवर्ष में कभी भी ये गवर्नर राजाओं का काम नहीं होता था। सोसाइटी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन। और इसलिए जितने आश्रम हैं, जितने गुरुकुल हैं, इवन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो सब समाज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और एक फेमस, आप लोगों ने एक कहानी वैसे सुनी है, दुष्यंत और शकुंतला की और दुष्यंत की। वो कहानी दूसरे ढंग से सुनी है, लेकिन उसका एक पक्ष जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि जब दुष्यंत भूल गए शकुंतला को, तो ऋषि जब राज दरबार की ओर आए तो दुष्यंत को पता लगा, राजा को, कि ऋषि यहाँ पर राज दरबार में है, तो वो दौड़ के गए और उनको रिसीव किया और पैरों में पड़ के कहा कि मेरे से क्या गलती हुई, आश्रम की व्यवस्था में मेरे से कुछ करना है क्या, आप मुझे बुलाते मैं बता देता। ऋषि ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर शिक्षा नहीं चलती है, आश्रम अपनी व्यवस्थाएं देखता है, लेकिन तुमने जो दूसरा काम किया है विकृति का, मैं तुम्हें उसका ध्यान दिलाने आया। मेरा कहने का अर्थ है कि इवन चाहे राजाओं का समय हो, चाहे बाकी गवर्नमेंट सिस्टम हो, हमारा जो फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन है वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम सोसाइटी टू गवर्नमेंट। और आज चारों तरफ हम एक ही बात रहती है, गवर्नमेंट की ओर से फंडिंग कितनी आ रही है, कितनी आएगी, ये एक बड़ा शिफ्ट हुआ। दूसरा, हमारे मीडियम ऑफ एजुकेशन बिकेम इंग्लिश। और उससे पहले हमारे यहाँ पर जितने हमारे लैंग्वेजेस थी, 22 जो जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अभी बोलते हैं, इन सब में एजुकेशन थी। आप लोगों ने यदि कहीं पढ़ा हो तो एक ब्यूटीफुल ट्री ऑफ इंडिया एजुकेशन, ये धर्मपाल जी ने लिखा है। धर्मपाल वाज दी को वर्कर विद गांधी जी, और वो लंबे समय जाकर के ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ करके जो ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे उनके बेसिस रिसर्च करके, और फिर उन्होंने कहा कि 18th सेंचुरी तक भारतवर्ष में एक ब्यूटीफुल ट्री एजुकेशन सिस्टम का था, और वो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो केवल उन्होंने नहीं किया था, कहा गांधी जी का उसके लिए एक फेमस कोट है। उन्होंने एक स्पीच के अंदर वहाँ पर कहा था, चाथम हाउस लंदन में 20 अक्टूबर 1931 में एक स्पीच दिया। उसमें अंत में उन्होंने, गांधी जी ने कहा, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स व्हेन दे केम टू इंडिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग होल्ड ऑफ द थिंग्स एज दे वर, began to root them out. They scratched the soil and began to look at the root, and left the root like that, and beautiful tree perished. जैसे हम किसी पौधे को निकाल के वो बंदर करता है ना, जड़े देखा और उसके बाद में रख दिया, एक अच्छा ग्रो होने वाला जो ट्री था, जो प्लांट था, वो पेरिश हो गया। ये गांधी जी ने कहा है। ये ब्रिटिश जब आए भारतवर्ष में तो ये बड़ा इम्पैक्ट भारतवर्ष की एजुकेशन में हुआ। मीडियम इंग्लिश, उनको चाहिए क्या था? उनको चाहिए था, जैसे जैसे उनका साम्राज्य थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है और लंबे समय तक हम चलें यहाँ पर, उसके लिए उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो उनको साम्राज्य चलाने में सहायता करें। इसलिए उनको ब्रिटिश टेस्ट वाले लोग चाहिए थे। और इस वजह से उस समय पर ये दो चीज़ें, फाइनेंस की और पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये दोनों बदल गए। एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये बड़ा इम्पैक्ट भारत की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हुआ। नेक्स्ट प्लीज। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन को बदलने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं, और उसमें केवल कुछ का मैंने जैसे नाम दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन 1948-49 में बना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, DS कोठारी कमीशन, कमेटी ऑन हायर एजुकेशन 2009। अब इसमें प्रोफेसर यशपाल जो एक्स UGC चेयरमैन भी थे। हम जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर DS कोठारी जैसे लोग कितने बड़े विद्वान थे, और इन कमीशंस की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने बहुत अच्छे
सजेशंस भारतवर्ष की एजुकेशन को बदलने के लिए दिए थे। नेक्स्ट, नेशनल ये जो 68 की पॉलिसी आई थी, 1964-68 का 66 का जो कमीशन, कोठारी कमीशन था, इन द फॉलो अप दैट कमीशन recommendations were came in the form of education policy 1968. That was the first education policy of country after independence. उसके बाद में फिर दूसरी पॉलिसी आई 1986, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एजुकेशन के डिफरेंट इक्वलिटी वगैरह के डिफरेंट कमिटीज के रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट, राममूर्ति कमेटी के बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशंस एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए थे। और जो पिछले 2 दशक हैं 2005 टू 2019 लगातार कुछ न कुछ एजुकेशन के ऊपर, इस बीच में नॉलेज कमीशन भी आया था 2005, जिसमें ये कहा था कि अब भारतवर्ष की जो एजुकेशन है उसको और एक्सपांड करना चाहिए। एंड एट दैट टाइम उसमें ये कहा गया कि कम से कम 1500 यूनिवर्सिटीज़ इस देश को चाहिए। आज हम देखते हैं अराउंड 1200 यूनिवर्सिटीज़ तो हो गई हैं और कमिंग ईयर्स में बहुत जल्दी बहुत सारे और यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ अंडरलाइन करना चाहता हूँ। बिफोर दी पॉलिसी, सेकेंड पॉलिसी 1986, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सो मेनी कमीशंस, पॉलिसी एंड कमिटीज रिफॉर्म्स के लिए लेकर के आए। व्हाट इज द रीजन? विजिबल चेंजेस आर, विजिबल रिफॉर्म्स आर नॉट सीन इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। उस कमेटी में जो उसका कंक्लूजन था, उस कंक्लूजन का था नंबर 1, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एजुकेशन। ज़्यादातर हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट्स बदलती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, अभी हैं हार गए दूसरी बार नहीं हैं। ब्यूरोक्रेट्स वो परमानेंट हैं बट वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। दे आर एक्सपर्ट ऑफ ऑल बट दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। और इतने स्मार्टली आज एजुकेशन में है, कुछ गड़बड़ हो गया, कोई प्रश्न उठाएगा, कल एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे। लाइक दैट कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसकी एजुकेशन भारतवर्ष की जो रिकमेंडेशंस आई है उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाई जाए। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी को कोई काम दिया, भैया ये करना था, आपको क्यों नहीं हुआ? UGC has given so many guidelines. These guidelines have been implemented by the institutions or not. Nobody is there to ask for an answer. And third, the जो फाइनेंस के लिए जो प्रोजेक्शंस दिए गए थे कोठारी कमीशन के अंदर, जो बड़ा प्रोजेक्शन जो आज तक भी बात आती है, 6% ऑफ GDP शुड बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, वो आज तक नहीं हुआ है। अभी भी शायद आप लोग कॉमर्स के लोग ज़्यादा बजट देखते हैं, उनको ध्यान में होगा कि वो शायद 3 और 4 के बीच में कहीं कहीं रहता है, तो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं जाता है। ये 3 रीजन्स उन्होंने दिया। और दूसरा आप ये देखिए कि एजुकेशन पॉलिसी 86 में आई थी। आफ्टर दैट द सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, दिस एजुकेशन पॉलिसी 2020 केम आफ्टर 34 इयर्स। भारतवर्ष की दिशा एजुकेशन की किधर होनी चाहिए, इसको तय करने के लिए इतना बड़ा बड़ा गैप है। 68 के बाद में 86 के बाद में नाउ द पॉलिसी हैज़ कम। और फिर मैं कहता हूँ कि इस बीच में जो पॉलिसी की रिकमेंडेशंस आती हैं, उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल और आंसरेबल नहीं होता है। इसमें जो मैंने शुरू में कहा, इस पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, दिस पॉलिसी हैज़ द इनपुट्स फ्रॉम lakhs of the people of the country. That is one thing, starting from intellectual up to the village, rural level persons. The second important thing is, Prime Minister of India, after giving this document to the country, addressed the vice chancellors of the country and chancellors of the country. और उस समय आप जानते हैं कि कोविड का समय था, इसलिए ऑनलाइन था। देश के सारे वाइस चांसलर्स और गवर्नर्स को उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा
कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरी कॉमा एंड फुल स्टॉप ऑफ दिस पॉलिसी, एंड इफ देयर इज सम रिक्वायरमेंट, देयर इज सम हेल्प, आई एम देयर विद यू। ये एक बड़ी बात थी जो एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूं और मेरे से आप कुछ भी सहायता। एंड नॉट ओनली दिस, केवल उस समय भाषण नहीं दिया, आप जो सब एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एवरी ईयर इन जुलाई एक नेशनल 2 दिन का समिट होता है एजुकेशनिस्ट का, जिसमें वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स ये सब आते हैं एवरी ईयर, और उसमें फिर स्टॉक टेकिंग होता है, कहाँ तक हम अपन आगे गए हैं और कहाँ और आगे जाना है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आप लोगों ने, मैंने कहा था 60 पेज की पॉलिसी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं पढ़ा, बिकॉज वी आर दी फैकल्टी मेंबर्स, वी आर टीचर्स, हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम हमारी एजुकेशन को किस ओर लेकर के जा रहे हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें दिए हैं। एंड द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ दिस पॉलिसी। मल्टीडिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक, इसका मतलब ये हुआ कि हॉलिस्टिक एजुकेशन वो होगी जो किसी यूथ के लिए उसके जो 4 बातें कहते हैं अपने यहाँ की एजुकेशन के पर्पस के अंदर कहते हैं कि बॉडी, माइंड, हार्ट एंड उसकी आत्मा, ये जो चारों का विकास है वो जब होता है तब वो एक विकसित मनुष्य बन के खड़ा होता है। उसको एक इंटीग्रल ह्यूमन बीइंग कहते हैं, उसको एक सर्वांगीण व्यक्ति कहते हैं, उसको एक हॉलिस्टिक व्यक्ति कहते हैं। कैंपसेस में उस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, और ये विजन ऑफ द पॉलिसी में दिया है। विजन ऑफ पॉलिसी, कैसे लोग हमें तैयार करने हैं, तो उसमें से हॉलिस्टिक पर्सन्स, हॉलिस्टिक यूथ आना चाहिए। और जब ये 4 बातें होती हैं, चारों प्रकार के, उसके इंटेलेक्ट का विकास होना है, उसके इमोशंस का विकास होना है, उसके स्पिरिचुअल कंसेप्ट का विकास होना है, तो वैसा ही आपको एनवायरनमेंट और वैसा ही क्यूरिकुलम डेवलप करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट? मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज द वन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। व्हाई मल्टीडिसिप्लिनरिटी? हम कई बार हम कहते हैं, मैं हायर एजुकेशन काउंसिल में काम करता हूँ और टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं। कई बार बात होती है तो फर्स्ट सेंटेंस ये होता है कि हम ऑलरेडी मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट हैं और हमने एनईपी इम्प्लीमेंट कर दी है। इन 2 बातों में क्या मतलब है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स 3 फैकल्टी हमारे चलते हैं, यानी वी आर मल्टीडिसिप्लिनरी। हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी क्या किया है हमने? ये जो चॉइस बेस्ड सिस्टम लगा दिया है और मेजर माइनर के कंसेप्ट लगा दिए हैं, इसका मतलब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। दैट इज ए पिंच, वो इम्प्लीमेंटेशन का एक छोटा सा, बहुत माइनर सा पार्ट है। लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरिटी का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। आपको यदि इस प्रकार के लोग चाहिए जिनको हम सर्वांगीण व्यक्ति कहते हैं, समग्र व्यक्तित्व कहते हैं, ऐसे लोग यदि आपको चाहिए तो फिर उसके लिए आपको वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसलिए क्यूरिकुलम कैसा है? वो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट का वो मास्टर होना चाहिए, इसलिए कोर सब्जेक्ट जो उसकी चॉइस है। देन बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस आते रहे कि बच्चों को कई बार लगता है फिजिक्स पढ़ते समय मेरा इंटरेस्ट है, मैं गिटार अच्छा सा बजा सकता हूँ और मेरी उसमें महारत है, व्हाई डोंट यू गिव क्रेडिट टू दैट पर्सन? और इसलिए कहा कि गो बियॉन्ड दी फैकल्टीज, और इसलिए रेजिमेंटेशन तोड़ दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर यू, और उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया? जैसे मैंने कहा कि कंसेप्ट चेंज हुए ब्रिटिशर्स के समय, उसमें से एक बड़ा चेंज ये भी था, एजुकेशन का पर्पस और फिलॉसफी कैसे होती है, उनको चाहिए थे अपने साम्राज्य चलाने के लिए, इसलिए वैसी सिस्टम उन्होंने एजुकेशन लेके आए। तो फिर उन्होंने क्या कहा, ये हमारा एजुकेशन है, आप आइए और इसको पढ़िए।
एजुकेशन होना किसकी चाहिए? लर्नर्स और सोसाइटी के लिए एजुकेशन चाहिए। समाज एजुकेशन के लिए है या एजुकेशन समाज के लिए? और इस बड़े कंसेप्ट के कारण से इतना बड़ा चेंज इसके अंदर आया, और इसलिए कहा कि लर्नर की यदि आवश्यकता है कि उसको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको चॉइस दीजिए, और इसलिए मल्टीपल चॉइस का कंसेप्ट को विस्तार दिया। हम सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ी सी चॉइस उसको देते थे, मेजर और माइनर की, लेकिन अब ये कहा कि उसकी चॉइस बढ़ा दीजिए, और उसकी चॉइस यदि ये जाती है कि इन द गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट चॉइस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, मूक्स का एक प्लेटफॉर्म दे दिया। मोर देन 3,500 कोर्सेज आर देयर, एंड स्टिल यूजीसी भी कहता है, एआईसीटी भी कहता है, ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स, जिसको भी ये लगता है कि मेरे सब्जेक्ट का ये पार्ट जो है बाकी फैकल्टी के बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए, आप मूक्स के ऊपर कोर्सेज बना करके दीजिए। ये सबके लिए एक कॉल है देश के अंदर। और यूजीसी ने ये भी कह दिया, पहले 20% कहा था, बाद में कहा अप टू 40% आप अलाउ कीजिए बच्चे को। जरूरी नहीं है आपके 60 के बैच के अंदर से 60 के 60 बच्चे कहेंगे कि हमें आपकी 60 चॉइस आ गई जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी चॉइस है उसको करिए। मेरे को अभी एक प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल बता रहे थे, बोले कि एक बच्चा मेरे पास में आ गया कि आप A++ कॉलेज हैं और मेरे को मराठी लैंग्वेज इसके अंदर मेरे को पढ़ना है, तो आप मेरे को इसकी उपलब्ध कराइए, और आप कहते हैं कि हम सारे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा प्रश्न उस बच्चे ने मेरे सामने रख दिया, लेकिन मैंने उसको ना नहीं किया। क्या किया? बहुत सारे मराठी स्पीकिंग लोग हैं, इवन इन दी फैकल्टी मिल जाएंगे। इस यहाँ आपके अंदर ही बहुत सारे होंगे जो बंगाली अच्छे बोलते होंगे, कोई मराठी बोलने वाला होगा, कोई यदि आंध्र का है तो तेलुगु बोलने वाला होगा। उन्होंने कहा कि तुम एडमिशन लो और तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करूँगा, और उन्होंने व्यवस्था कर दी। सवाल ये है कि माइंडसेट उसके लिए तैयार है क्या हमारा, या पहला काम ये है कि नहीं ये हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो बच्चे को क्या चाहिए, उस लर्नर को क्या चाहिए, और सोसाइटी को क्या चाहिए, हम वैसी शिक्षा दे सकते हैं क्या? या मेरे पास ये है और तुम आओ ये लो, इच्छा है तो लो। और इसलिए आप देखते हैं डिग्रीज आर बिकमिंग इररिलेवेंट नाउअडेज। यदि जो जो चेंज नहीं करते हैं वो इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं। इसलिए बार बार ये आग्रह किया जाता है कि कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और उसका मैपिंग ये करिए, बच्चे को कन्विंस कीजिए, तुम ये सब्जेक्ट ले रहे हो तो इसके लिए ये आउटकम्स होंगे, ये तुम देख लो तुम्हारे लिए सुटेबल है क्या। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, और उस क्यूरिकुलम रिवीजन में अपडेटेड क्यूरिकुलम हो, और इसलिए कहा कि 3-4 साल के अंदर क्यूरिकुलम रिवाइज करिए। दूसरा, मल्टीडिसिप्लिनरी के क्यूरिकुलम की आवश्यकता है। हर प्रकार के कोर्स के साथ में कोई उससे रेलेवेंट स्किल का कोई उसको ट्रेनिंग दीजिए, अप्रेंटिसशिप करवाइए उसको। तीसरी क्यूरिकुलम की रिक्वायरमेंट है, आज जितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, हमारी इंस्टीट्यूट से निकलने वाला बच्चा यदि वो किसी भी स्ट्रीम का है और उसको ब्लॉकचेन का पता नहीं है, इतना दुनिया भर में हो अल्लाह एआई का हो रहा है, उसको पता नहीं है, तो आने वाले जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे क्यूरिकुलम का पार्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा प्रोजेक्ट्स दीजिए बच्चों को। मैं यहाँ इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही रहा हूँ, पढ़ा हूँ। हम लोग जब नए जब फैकल्टी मेंबर्स बने थे, मैं देखता था कि प्रोफेसर BL सराफ, साइंस के सीनियर मोस्ट रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर, प्रोफेसर लोकनाथन फिजिक्स के, महाराजा कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट के टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने आते थे। और एक दूसरी स्ट्रीम होती थी, महाराजा कॉलेज इज फॉर अंडर ग्रेजुएट टीचिंग और डिपार्टमेंट फॉर PG टीचिंग। तो जिसका भी प्रमोशन हो गया और प्रोफेसर बना, पहला काम ये कि मेरा बेसमेंट अब कॉलेज से हटा करके डिपार्टमेंट में कर दीजिए, अब मैं अंडर ग्रेजुएट में नहीं दे, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। ये लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं,
इनको बहुत क्लियर है कि आपको आइडियाज तो यंग ब्लड से मिलेंगे, और इसलिए पॉलिसी ने तो यहाँ तक कहा है कि आप रिसर्च की बात केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज तक मत सीमित रखिए, टेक इट टू स्कूल्स ऑल्सो। 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे जो अब एकदम वाइब्रेंट माइंड है, उनके सामने आप प्रॉब्लम बताइए, आपको सॉल्यूशन देंगे। और इसलिए जितने यंग बच्चों के सामने आप प्रोजेक्ट्स की बात कहेंगे, वो नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के जाएंगे। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ये कॉम्पिटिशन्स कराते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम दिया, आपने मॉडल बना के लाइए, और सब एग्जिबिट करते हैं, और उसमें से बहुत अच्छे बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इट वाज द कोर ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, इट हैज नाउ कम थ्रू एनईपी। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है कि उसको फर्स्ट हैंड, जो पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी हम साइंस में भी, इवन आर्ट्स कॉमर्स के अंदर तो हो ही नहीं रहा था, साइंस में भी होता ये था कि प्रैक्टिकल के समय भी बच्चे के साथ में खड़े होकर के वो प्रैक्टिकल कैसा कर रहा है, वो हमारे टीचर्स नहीं करते थे। ठीक है, दे दिया, और लैब असिस्टेंट, लैब बॉयज हैं, वो उनको सामान दे रहे हैं, वो जो भी 2 घंटे में करके जा रहे हैं। नहीं, उसको कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, वो उसमें से कुछ लर्न करके कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो होना चाहिए। बाहर समाज में क्या आवश्यकता है, इन इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट, वो वहाँ जा कर के उसको आगे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उनके साथ में भेजिए, इसके इंटर्नशिप करवाइए, अप्रेंटिसशिप करवाइए उनके साथ में। आप टूर लेकर के जाइए। हिस्ट्री के बच्चों का क्यों नहीं टूर होना चाहिए? आप चले जाइए भारतवर्ष के दक्षिण के अंदर, क्या स्कल्पचर है। हम 7 वंडर्स की बात कहते हैं, और 7 वंडर्स में भारतवर्ष में आगरा तक टिक जाते हैं, और उसके लिए बड़ी ऐसी कहानियां बनाते हैं। आप जाइए तंजावुर में, आप जाइए मदुरई के अंदर, आर्किटेक्चर देखिए मंदिरों का, क्या शानदार आर्किटेक्चर है। चोल वंश के साम्राज्य के समय 2500 वर्ष पूर्व एक पुल है, वो 2 स्टेट्स को जोड़ता है, साउथ इंडिया के एक नदी के पुल है, 2500 साल पुराना पुल है, और आज तक बना हुआ है। कौन सा उसमें सिविल इंजीनियरिंग थी, कैसा मटेरियल था। और हमने अभी देखा 2-3 महीने पहले, 1 महीने के अंदर बिहार में 17 पुल गिर गए, और बहुत लंबी लाइफ नहीं थी उनकी। तो ये जो है बच्चों को लेकर के जाना, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, वो भले ही आर्ट्स के हों, साइंस के, कॉमर्स के हों, उनको एक्सकर्शन के लिए ले जाना। और एक्सकर्शन में बच्चा सीखता है, एंजॉय करता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, बॉटनी के अंदर का एक्सकर्शन गया, प्रोफेसर बी त्यागी जो थे, वो सीनियर मोस्ट बॉटनी के व्यक्ति लेके गए थे। हमारे जो सीनियर लोग थे वो बताया करते थे, उन्होंने कहा कि हम गए तो एक दिन सबका एक्सकर्शन करने वाले सबका मन बन गया कि सिनेमा देखने जाएंगे। तो सिनेमा देखने गए, तो वो भी साथ थे, प्रोफेसर त्यागी भी साथ थे। अब जब गाना आया, उस गाने के ऊपर हीरोइन डांस कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर त्यागी कह रहा है कि वो जो ट्री है ना, वो सिकोया का ट्री है। ये जो चीजें हैं वो हमेशा ध्यान रखती हैं बच्चों को, इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये चीज हम बच्चों तक लेकर के जाए, और एजुकेशन ये एक जॉय है, ये उनको लगना चाहिए। ये बर्डन है, बर्डन होता है तो आप जानते हैं कोटा में 30 लोग हर साल मरते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनको भेजते हैं कि यही डायरेक्शन है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। और क्यूरिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो जाता है, आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया के कारण से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पता रहती हैं, इसलिए आप लोगों ने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का सुना होगा। आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज एट वेरी हाई लेवल। रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे कहीं पे, ये जो वीवर बर्ड है ना, बया, इसके घोंसले एक पेड़ पे लगे हुए, कई सारे घोंसले। तो पत्नी ने कहा कि ये घोंसले यदि 2 पेयर में ले आएंगे तो ड्राइंग रूम में लगाएंगे, और ये आप ला सकते हैं क्या? तो वो उतरे और जाकर के थोड़े ऊंचाई पे थे, सोचने लगे कि कैसे लेंगे। इतने में कि एक बकरी चराने वाला छोटा सा बच्चा दिखा,
उसको उन्होंने बुलाया, तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हो? बोला हाँ चढ़ सकता हूँ। तो बोले कि मेरे को 2 ये घोंसले ला करके दे दो। बोले नहीं ला के दूंगा। बोले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बोले तुम्हारे पैसे तुम्हारे जेब में रखो, नहीं ला के दूंगा। बाद में उसने पूछा तुम क्या क्या कारण है, इतने बड़े रूखेपन से मुझे जवाब दे रहे हो? उन्होंने कहा कि शाम के समय इन बच्चों की माँ जब घूमती घामती घोंसले में आएगी, न घोंसला मिलेगा न बच्चे मिलेंगे, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा। वो ब्यूरोक्रेट कहता है कि मैं जीवन का ये जो वैल्यू है मैं समझ ही नहीं पाया, 70 इयर्स तक मैं समझ ही नहीं पाया। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे? हमारा ये जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरिकुलम है उससे नहीं आएंगे। इसलिए इन वैल्यूज को लाने के लिए वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। इसलिए भारत की ज्ञान की परंपरा आनी चाहिए उसके अंदर। भारत के अंदर क्या इतनी बड़ी बातें थी कि लोग उस ज्ञान को लेकर के और कैसे अपना उत्साहित जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी। एजुकेशन में वैल्यू चली गई, खत्म हो गई। बचा क्या है? पैकेजेस बचे हैं। पैकेजेस से व्यक्ति निर्माण नहीं होता, पैकेजेस से होलिस्टिक पर्सन तैयार नहीं होता, समग्र व्यक्तित्व तैयार नहीं होता। पैकेजेस से ये सॉल्यूशन जो हैं आज क्लाइमेट कंडीशंस के और एनवायरमेंटल चेंजेस के, उनसे वो तैयार नहीं होते। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सबमिट कर लेते हैं, उन सबमिट और कॉन्फ्रेंसेस के कंक्लूजन कुछ भी आते रहे हैं, उनको फर्स्ट पर्सन अप्रोच से कोई लागू नहीं करता है। पूरी दुनिया को अमेरिका कहता है कि कार्बन फुटप्रिंटिंग कम करिए, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ है। भारत आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि भारतवर्ष के ब्लड में है एनवायरनमेंट के साथ में जीवन जीना। छोटी छोटी बातें हमारे घर के जो महिलाएं हैं उन्होंने संस्कारों से इन विषयों को बचा के रखा है। कैसे पौधे को पूजा करके भी बचाया जा सकता है, कैसे किसी पवित्र दिन के ऊपर जाकर के चींटियों को भी डालकर इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को, श्राद्ध के पक्ष के समय आवश्यकता है कौवों को बचाने की। ये छोटे छोटे बातें हैं, इनको हमने इंग्लिश एजुकेशन, मैं लैंग्वेज के खिलाफ नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट। भारतवर्ष का हर व्यक्ति हर लैंग्वेज जाने और बढ़िया से जाने, लेकिन इसके कारण से, एक लैंग्वेज के कारण से जो माइंडसेट भी बदला, और इसके कारण से एक अपने आप का लेवल, दूसरा डिग्री होते ही मेरा ये लेवल हो गया है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब वाइस चांसलर था, मेरे पास में डीसी रेट में अटेंडेंट लगाने के, डीसी रेट यानी जो यहाँ का कमिश्नर होता है वो डिसाइड करता है कि अटेंडेंट है, क्लास हो रहे हैं, इनकी पर मंथ क्या होगी, तो वहाँ डीसी रेट में हमें ये लगा दो, ये करने आते थे। कुछ लोगों की बैकग्राउंड में पता लगता था कि उसके पास में 50 एकड़ जमीन है। 50 एकड़ जमीन को छोड़ करके 18,000 रुपए के अंदर यहाँ पर पानी का गिलास पकड़ने के लिए तुम आ रहे हो भाई। ये जो माइंडसेट है व्हाइट कॉलर जॉब, इट केम थ्रू दैट एजुकेशन। और इसलिए पर्पज ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बदल गया। एनईपी कहती है कि उसको फिर से लेके आए। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द यूथ चाहिए, तो क्यूरिकुलम में इन सब बातों को लेकर के आइए। और इसलिए वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है। केवल कुछ आर्ट्स कॉमर्स साइंस हमारे सब पढ़ाए जाते हैं, इससे मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं आती है। फिर उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शंस हैं। बच्चों को ये लगता है कि मेरे एनहांसमेंट, और देखिए जब भी भारतवर्ष में इन विषयों की बात हुई है, वैल्यू एजुकेशन की बात हुई है, थोड़ा वेदों की बात हुई है, संस्कृत के लिटरेचर की बात हुई है, तुरंत लोग कहते हैं कि ये 17वीं शताब्दी में फिर से लेके जाएंगे। शायद भारतवर्ष में कभी भी धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा है, इसका मतलब अर्थ कमाना है, लेकिन अर्थ कमाते समय क्या कहा है? आप 2 हाथ से कमाइए, 100 हाथों से दान दीजिए। 2 हाथों से कर्म इतना कीजिए कि जो 100 हाथों जितना है, और इतना हो जाए तो 1000 हाथों जितना दान दीजिए। इसलिए कभी भी ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे हमने अब मोड़ लिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं कहा। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजें ही सब कुछ हैं, उससे मनुष्य नहीं बनता है। और इसलिए मनुष्य में संवेदनाएं निर्माण करने के लिए आपको एक इकोसिस्टम देना पड़ता है बच्चों को। मेरे अलावा समाज के अंदर, परिवार के अंदर
कोई और भी मेरा इंतज़ार कर रहा है कि ये काबिल होकर के आएगा तो हमारे दुख दर्द दूर करेगा। वो काबिल होकर के आने के बाद में जिसके एक मदर फादर ने उसको एजुकेट किया, एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बच्चा कोई प्रोफेसर है, एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, और वो बूढ़े 80 साल के माता पिता नगर निगम के उस आवास के अंदर जाकर के शरण लेते हैं। ये है एजुकेशन। इसको संवेदना कहते हैं क्या? ये ह्यूमनिटी है क्या? ऐसा व्यक्ति समग्र होता है क्या? और इसलिए हॉलिस्टिक पर्सन का मतलब भरत ऋषि ने ये कहा है कि वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी प्रकृति, सृष्टि, उस तक का ध्यान में करे, वहां तक उसको तादाद में। इसलिए जो शुरू में सा विद्या विमुक्त है, सा विद्या विमुक्त आदि शंकर थे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े समय में ही मैं कंप्लीट। आदि शंकर थे। आदि शंकर ने कहा कि एक उन्होंने कंसेप्ट दिया कि भाई ये जो भारत समाज के अंदर जो चल रहा है, इस चलने वाले इसके अंदर आवश्यकता किसकी है? लोगों में बहुत सारे चीजें आ रही हैं। उन्हें एक सूत्र दिया केवल, और बहुत फेमस है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मये ना पर है। ये सत्य क्या है जिसको आप भगवान कीजिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, ब्रह्म कीजिए, वो केवल सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और यदि आपको एक बहुत आनंद में जीना है तो उस ब्रह्म के साथ, उसके सत्य के साथ में साकार हो जाओ। और वो साकार होना है यानी वो लिबरेशन होना होता है। और वो लिबरेशन की जो यात्रा है, जर्नी है, वो जर्नी जिस दिन व्यक्ति के समझ में आती है वहां से शुरू होती है। आज जिसने भी इस बात शुरू की है वो एकदम उसको सत्य को जान गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये यात्रा जीवन भर चलती है। किसी को ये यात्रा बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को बहुत देर में समझ में आती है। स्वामी विवेकानंद ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है कहते कहते चले गए रामकृष्ण के पास में। रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर मैंने देखा, जैसे तुम हो, तुमको मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, वैसे मैंने देखा है। इससे पहले किसी ने विवेकानंद को, नरेंद्र नाथ को ये नहीं कहा था कि ईश्वर मैंने देखा है। बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों की, ब्रह्म की, सब करते थे। ईश्वर को देखा है क्या, इसका जवाब दो। और उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, मुझे दिखाओ। हाँ दिखाऊंगा, समय आने पर दिखाऊंगा। और आप सब लोग जानते हैं कि उनको एक समय ये आया कि साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने के बाद में वो गुरु क्या करता है? अब ईश्वर से साक्षात्कार हो गया यानी अब मोक्ष प्राप्ति, ये जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अपना जीवन का लक्ष्य तय करने से पहले भारतवर्ष का एक चक्कर लगाना। कुछ नहीं कहा तुम्हें क्या करना है, भारतवर्ष का एक चक्कर लगाना। विवेकानंद पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए विवेकानंद रॉक के ऊपर 3 दिन जाके बैठते हैं। गुरु ने ये क्यों कहा था? और 3 दिन के बाद में वो उठ करके खड़े होकर के कहते, इस जीवन का लक्ष्य दरिद्र नारायण शरणम गच्छामि। इस जीवन का केवल यह है कि दरिद्रों की सेवा करूंगा मैं। ये उस गुरु को पता था कि ये इसमें ये कैपेसिटी है, समाज की इस दुरावस्था को दूर करने के लिए व्यक्ति आगे आएगा। शंकर तो 8 साल के थे, आदि शंकर तो गुरु की तलाश में घूमते जा रहे थे नर्मदा के तट पर जाकर के। और उनको किसी ने बताया कि ये जो गुफा है, इस गुफा के अंदर एक ऐसा सन्यासी है, वो तुम्हारे गुरु बनने लायक है। 8 साल का बालक सब जगह पूछता घूम रहा था। वो दिव्य शक्ति भी थी। कहते हैं कि नर्मदा का कुछ पानी गुफा के अंदर जा रहा था। गुरु अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, पानी जो है उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। अपना कमंडल लेकर के नर्मदा के सामने कर दिया। कहते हैं कि नर्मदा का रास्ता मुड़ गया। गुरु की आंखें खुली, तुम कौन हो? आप जानते हैं पहला वाक्य उन्होंने क्या कहा? आदि शंकर ने, 8 साल के बच्चे ने उन्होंने कहा कि शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। चिदानंद क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं चित्त, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। जो सत्य जानता है, ये माया है, ये मोह है, ये ब्रह्म है, ये सृष्टि है, सत्य जानता है।
और ये सत्य उसके चित्त यानी आत्मा तक पहुंच गया है, वो व्यक्ति आनंद में रहता है। और ऐसे आनंद में रहने वाला व्यक्ति सच्चिदानंद होता है। विवेकानंद कहा, मैं सच्चिदानंद तो हो गया हूं, लेकिन काम क्या है मेरा? दरिद्र नारायण शरणम गच्छामि। मैं इस जीवन के अंदर दरिद्र नारायण की सेवा करूंगा। ये कंसेप्ट कौन देता है? गुरु देता है। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा, भारतवर्ष की जो एंशियंट हमारी परंपरा थी, ये परंपरा में शिष्य गुरु के समीप आने के बाद में उसका जीवन बदलता है, उसकी दिशा बदलती है। वो बड़ा काम कैंपस से होना बंद हो गया। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि इस कंसेप्ट को, इस माइंडसेट को बदलते हुए फिर से लाओ कैंपस में, फिर से एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एक इकोसिस्टम बनाओ। उस इकोसिस्टम में जिस दिन प्रवेश लेने के लिए इंस्टीट्यूट में बालक बालिका आती है, उसको लगता है कि इस वातावरण के अंदर सब मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। दुष्यंत के आश्रम में जाने वाला हिरण वो स्वच्छंद घूमता है कि यहां मेरी रक्षा होगी, और राजा को अपना मुकुट उतार के अंदर जाना पड़ता है, ये आश्रम है जहां पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एनवायरमेंट हमारे कैंपसेस के कहां खो गए? इन एनवायरमेंट को वापस लाना है, 17वीं शताब्दी में नहीं जाना है। आज सारे बच्चे में वो सारे स्किल्स होनी चाहिए, वो कैपेसिटीज होनी चाहिए। और जो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2047 तक विकसित भारत कहेंगे, विकसित भारत कहेंगे, बनेंगे, यानी क्या है? केवल इकोनॉमी हो जाएगी 35-40 ट्रिलियन की, यहाँ तक नहीं है। इकोनॉमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के यूथ में वो कैपेसिटी है। और जिस ढंग से हमारी ये 1 ट्रिलियन 2-3 साल में बढ़ रही है, उसमें जाते समय 2047 तक इकोनॉमी बढ़ने में दिक्कत नहीं है, वो बढ़ जाएगी। कैपेसिटी वाले हमारे बच्चे हैं, वो सारे दुनिया में जो बने हैं आज सुपर पावर, जो बने हैं इकोनॉमी के अंदर समृद्ध, उन सबको बनाने वालों में भारतवर्ष के यूथ का योगदान बहुत बड़ा है। भारत आज दुनिया का यंगेस्ट नेशन है। आने वाले और 30-40 साल तक यंगेस्ट नेशन के रूप में लीड करेगा दुनिया को। और यंगेस्ट नेशन का मतलब है कि बड़ी संख्या में यूथ है, एक बड़ा डिविडेंड हमारे सामने है। ये सब चेंज लाएगा। लेकिन भारतवर्ष की फिलॉसफी क्या है? सुपर पावर यानी क्या है? ज्ञान आधारित समाज, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी वो सोसाइटी जो केवल अपना कल्याण की बात नहीं करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। पूरा मनुष्य समाज, पूरी सृष्टि, इसके लिए हम बने हैं मनुष्य। उस बड़े लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए NEP ये सारी बातें कहती है। मदर टंग में वो चाहिए। किसी बच्चे को केवल भाषा इसके रूप के कारण से बाधा क्यों आना चाहिए? अभी तक होता रहा, लंबे समय तक होता रहा है। फिर उसको क्रेडिट्स कभी भी वो लेगा, 6 महीने का गैप लेगा, वापिस आएगा, अपने क्रेडिट्स को अर्न करेगा, अपने डिग्री लेगा, वो ठीक है। एक बड़ी चीज है RPL का कंसेप्ट, रिकॉग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे व्यवसाय रहे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। और सर्टिफिकेट नहीं है तो ये गंवा रहे हैं और इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। ठीक है, ये फला काम करता होगा, सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसको थोड़ा सा एक सम्मान मिलेगा। RPL का एक बड़ी बात UGC ने एक कंसेप्ट में लाए है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आई है। इसके आने के बाद में ये आप लोगों ने सबने देखी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस NEP के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्कीम्स, PM विद्या लक्ष्मी, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम अभी आई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 10,000 करोड़ का एक बना दिया कॉर्पस, और आगे आवश्यकता के अनुसार बनेगा। उसकी बाकी डिटेल्स रिसर्च को एक आगे बढ़ाने के लिए, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह। ये नेक्स्ट, ये बड़े जो हैं उनको मैंने केवल यहाँ पर ये नाम दिया है। नेशनल ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये बनने के बाद में ये इतने सारी चीज़ें आ गई हैं जो बच्चों के लिए, सारे टीचर्स के लिए सारे पोर्टल्स ये सब उपलब्ध हैं। अनुवादिनी करके टूल आ गया है, जिसके कारण से AICT के द्वारा 14 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन, BTech और मेडिकल की जो किताबें हैं उन सब का हो रहा है। नेक्स्ट,
भाषा, भारतीय भाषा समिति एक इम्पोर्टेंट जो है डायमेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना और भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन देना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मैं आप लोगों को एक निवेदन करूंगा यहाँ पर, भारतीय भाषा समिति के ही माध्यम से ये विषय सामने आई है। 11 दिसंबर का दिन होता है जिसको भारतीय भाषा परिवार के रूप में देश भर में मनाया जाने लगा है। ये जो दिवस है, इस दिवस के दिन कैंपसेस में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। क्यों ना हम अपने कैंपस में एक सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन ऐसा एक माहौल बनाएं। कोई बच्चे माना बंगाली, मराठी, तेलुगु ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हैं, एक दिन बच्चे सब तेलुगु के 10 सेंटेंसेस सीखेंगे, एक दिन बंगाली के सीखेंगे। हम नॉर्थ इंडिया के सारे लोगों को ये रहता है कि उत्तर भारत की जो हिंदी है वो तो सब ठीक है, लेकिन दक्षिण के लोग जो है हिंदी को अपनाते नहीं। आप और हम क्या मराठी, तेलुगु, तमिल इसको अपनाते हैं क्या? और इसलिए ये यदि एकात्मता लानी है, भाषा ये भारत की एकात्मता, एकता के बीच में आनी है, तो कौन इसको ठीक करेगा? परिसर ठीक करेंगे, टीचर्स ठीक करेंगे, यूथ ठीक करेगा। और इसके लिए आप ये देखिए कि वातावरण ही बदल जाएगा उसका। एक दिन अपने अपने रीजन के कॉस्ट्यूम्स पहन करके बच्चे आएंगे, एक दिन उस रीजन की जो फूड हैबिट्स हैं उनको एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट में दिसंबर के अंदर इस प्रकार का वीक मनाया जाता है, और वो मुझे लगता है दैट विल गिव इम्पिटस टू दी भाषा, लैंग्वेजेस सीखने का एक माहौल लोगों के बीच में बनेगा। और IKS का डिवीजन एक AICT में बना है, बड़ा डिवीजन है, उसके माध्यम से बहुत सारे, देखिए IKS की बात आती है तो जैसे मैंने कहा कि हमने NEP लगा दिया ये कहने वाले लोग, वैसे ही हमने IKS लगा दिया। क्या कर दिया हमने? हमारे बच्चों को एक कोर्स गीता का पढ़ाते हैं, एक पेपर, एक कोर्स गीता, एक रामायण, ये पढ़ाने से IKS नहीं आएगा। IKS हमारे कंट्रीब्यूशंस, भारतवर्ष के कंट्रीब्यूशंस जिस सब्जेक्ट में हैं उस सब्जेक्ट में वो पढ़ाना चाहिए, हमारे कंट्रीब्यूशन उस सब्जेक्ट में आना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि IKS का यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, भारतवर्ष के IKS की विशेषता है, वो हमारे पेडागोगी का पार्ट बनना चाहिए। पेडागोगी को अब कोई ये चौक डस्टर से चलने वाला नहीं है, और केवल इससे भी नहीं चलने वाला है कि ठीक है वो गूगल पे है और इसके ऊपर है, इससे भी नहीं चलने वाला है। AI की चर्चा बहुत सारी करते हैं, लेकिन AI के यूज एंड डिसयूज, मिसयूज इसको बताने वाला तो शिक्षक होगा ना। इतना इसका उपयोग है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा जाओगे तो नुकसान में जाओगे। और इसलिए एक गीता एक्सपीरियंस करके एक मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं 5000 साल पहले भी AI था, AI के माध्यम से ही वो सब वाकया सारा सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। वो नहीं था, ऐसा नहीं है। इसलिए इस AI को माथे पर मत दीजिए, माथे को AI पे ले जाइए। AI ह्यूमन बीइंग को नहीं चलाएगी, ह्यूमन बीइंग उसको चलाएगा। कभी भी टेक्नोलॉजी सिर पे नहीं चढ़े, हमेशा इंटेलेक्ट हमेशा हावी रहना चाहिए, तब उसका यूज होगा मनुष्यत्व के लिए, मनुष्य के लिए, दुनिया के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे मैंने बताया, ये सारे चीजें आ रही हैं, आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं। नेक्स्ट प्लीज। UGC ने लगभग 60 गाइडलाइंस NEP इम्प्लीमेंटेशन के उसमें निकाली हैं। ये लिस्ट है। नेक्स्ट, ये 3-4 स्लाइड्स उसी की लिस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट 59। ये गाइडलाइंस आ गए हैं, निरंतर ये गाइडलाइंस आती जा रही हैं UGC की तरफ से और AICT की तरफ से, ये करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। आप इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। यूनियन बजट में जो अभी कहा है यूनियन ने, उसके बारे में NEP में एक ये जो कोट है, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज विद इक्वल
NEP कहते हैं कि आने वाले समय में if you implement completely this education policy, then in our country only 3 type of institutions will be there. Either research intensive universities, teaching intensive universities, and degree awarding quality education undergraduate autonomous colleges. ये 3 प्रकार के इंस्टीट्यूट आने वाले. हालांकि इसमें समय लगेगा क्योंकि एफिलिएटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है और उसको बदलने में समय लगेगा. और जो रेजिस्टेंस एक मोमेंटम जो है इनर्शिया को तोड़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें भारतवर्ष में बहुत समय लगता है. नेक्स्ट प्लीज. ये मैंने बताया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया. नेक्स्ट प्लीज. NEP 2020 says that education system must develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination with sound ethical moorings and values, engaged, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive, plural society as envisaged by our constitution. इन हर मीनिंग को आप एक्सपेंड कर सकते हैं. इसका पता एक एक शब्द का बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सप्लेन आप कर सकते हैं. ये NEP का जिस्ट है. ऐसे लोग हमें चाहिए. और फिलोसफी मैंने बताया कौन सी फिलोसफी इसको है जो भारत की ज्ञान परंपरा के आधारित कैंपस को रिफॉर्म करने की बात है. और उसमें ये रविंद्रनाथ जी का जो कोटेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है. वो कहते हैं द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. Education means enabling the mind to find out that ultimate truth which emancipates us from the bondage of dust and gives us wealth of not of things but of inner light, not of power but of love. It is a process of enlightenment. It is divine wealth. It helps in the realization of truth. ये realization of truth, सत्य का साकार होना, ये किसी यूथ की यात्रा है. उसको साकार बनाने के अंदर जो भूमिका है वो शिक्षक की है, टीचर की है. कैंपसेस में हमारे आज के टीचर इस बड़ी भूमिका का दायित्व निभाने के लिए पहले अपनी यात्रा प्रारंभ करें. असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के साथ में वो टीचर नहीं बनता है व्यक्ति. टीचर बनने की यात्रा प्रारंभ होती है. वो केवल एक सर्टिफिकेट मिला है कि हाँ ये टीचर बना है. उसकी यात्रा बहुत लंबी है. टीचर बनना, शिक्षक बनना, वो यात्रा बहुत लंबी होती है. हमारी यात्रा चल रही होगी, चलनी चाहिए. उस यात्रा में अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को शामिल कीजिए और इस भारतवर्ष को उस दिशा में ले जाइए जिसका एक निश्चित उद्देश्य है इस मानवता के कल्याण का. आप सब लोगों का धन्यवाद. Thank you so much, sir. That was such an insightful, wonderfully insightful lecture, sir. Yeah, I think we all are quite touched with the lecture. May I please request Professor K.S. Sharma, sir, advisor, the IIS University, to please say a few words. Honorable Vice Chancellor, sir, Professor K.C. Sharma, sir, Professor M.K. Sharma, John, sir, and all of faculty members, my friends. This is a great occasion that we are here, and a very beautiful talk has been given by Professor K.C. Sharma, sir. And first of all, I will just mention that with AIU there are 1028 universities and institutions registered with AIU, and out of them 972 universities are from India and 18 universities are from overseas. And out of these 978 universities, the AIU has chosen our university as one of the 100 universities to organize this lecture, so that is a matter of great pride for us. So we thank AIU for selecting our university for this purpose. I express my great sincere thanks to Professor K.C. Sharma, sir,
who has very beautifully given us the narration of evolution of higher education system in India and the meaning of education in itself, great vision on education. The education should produce good human being. That is a great learning which he has given, and the vision over new education policy, various dimensions of new education policy. So in this connection, I would also like to mention that our patron, Dr. Ashok Gupta ji, he remain always devoted for quality of education. So we strive for quality of education, and the institutions which are run by IIS network of institutions, all of them, the IIS University, the International School of Informatics Management, IIERD, the IIS School, IIS Sitapura, Play School, everyone has great quality, and they are known in the country as quality institutions or premier institutions. So since Guptaji is no more, so it becomes our onus that we maintain the quality of these institutions and take forward them in the right direction. Now in this connection, I would like to mention that the state funding goes majorly to the central universities and IITs. There the salary component and the development component all is met by the government. In state universities, mostly the salary component is met by the government, but for development purposes, the universities have to depend upon their own resources. But in private sector, both for salaries and for development, the institutions have to depend upon own earning. So our institution is of that category that we have been doing the salary component as well as developmental purposes from our own earnings. And I wonder that how Dr. Gupta ji have been managing all this, that not only the salary component, this institution is giving good salaries, and I think we have promoted so many faculties under CAS to the level of senior professor, senior assistant professor, to the level of associate professor, and to the level of professor, and the good salaries are being given. So that way Gupta ji has a good tradition for promotion of faculty and giving good salaries to that way. And not only that, the contribution towards the developmental activities, environment of the institutions, and also to research, that was good. So under these circumstances, we have to think of maintaining quality. Now there has been a shift in government policies, that I think till 12th plan, the government used to give grants to the institutions, the colleges and the government colleges and the private colleges. They were getting the grants on equal status. They were recognized under 12B and getting grants. But thereafter the priority goes to the government institutions, and private institutions are losing that way. Even the UGC has stopped the schemes of major projects and minor projects. So when these schemes were running, our teachers used to get major projects and minor projects, and that way every project strengthens the infrastructure of the institution. So even if we get one project, it is strengthening in one way or the other our academics and infrastructure. So whatever the situation is, we hope that National Research Foundation, if it comes and provides facilities of projects and development grants to the institutions and private sector also, probably we will be benefited. And whatever the circumstances are, our duty becomes that we should prepare projects and submit to the funding agencies and try to get as many projects as possible, so that not only we are enriched in our academics, but the institution is also benefited in its infrastructure, and that way we can just add that Dr. Guptaji's motive was that every girl who takes admission in this institution should go out as a already woman. So now that slogan continues, along with that she goes as a already woman and as a good human being. So that way I think it is on us, on all of us, and also on Professor K.C. Sharma sir
as he is member of our executive council, so we all should move forward and carry the legacy of established by Dr. Gupta. So that is just I wanted to say. Thank you. Thank you, sir. May I now request Dr. Payal Chaturvedi, she's the coordinator IQAC IS University, to propose a formal vote of thanks. Thank you, Radhika. Namaskar. On behalf of IQAC IS deemed to be University, it is my privilege to extend our sincere gratitude to Professor K.C. Sharma, Chairperson, Haryana State Higher Education Council and former Vice Chancellor, Kurukshetra University, for delivering such an insightful lecture on evolution and future of higher education in India and beyond. Sir, your expertise and valuable insights have provided us with a deeper understanding of the evolving landscape of higher education from ancient to medieval to modern. The perspectives you shared on research, innovation and academic development with respect to NEP 2020 have been truly enlightening and thought-provoking. We would also like to extend our gratitude to the Association of Indian Universities, AIU, for giving IIS University the opportunity to host this lecture as part of their prestigious 100 lecture series commemorating AIU centenary celebrations. A heartfelt thank you to the management for their continuous support and encouragement. I would also like to express my gratitude to Professor T.N. Mathur sir, Honorable Vice Chancellor, Professor K.S. Sharma sir, Advisor, and Dr. Rakhi Gupta ma'am, Registrar, for their timeless guidance and support. And last but not the least, to the faculty members for their active participation and engagement. Once again, thank you, Professor Sharma, for sharing your time and knowledge with us. We truly appreciate your contribution and look forward to more such enriching interactions in the future. Thank you all. With this, we conclude today's session. Thank you so much, Professor K.C. Sharma sir. And if I may also just say that one concluding remark, that I have been honored to be a student of Sharma sir in the botany department. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, everyone.